نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ ہمارے پچھلے 3 مجلس گزر چکی، ہم نے رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے کچھ رمضان کے مسائل، روزوں کے مسائل پر کچھ دسترس حاصل کرنے کے لیے، کچھ یاد دہانی کے لیے، کچھ یادیں تازہ کرنے کے لیے ہم نے ایک سلسلہ جو شروع کیا تھا، اس سلسلے کی آج مجلس نمبر 4 ہے۔ اس میں پہلی مجلس جو ہے وہ شعبان میں کچھ ضروری باتیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اپنے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں۔ رمضان جو کہ ایک مہینے کے لیے ہمارے گھر میں قیام کرنے کے لیے مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیاری کے سلسلے میں ماہ شعبان میں کیا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر محمد اقبال کیلانی کی یہ کتاب تفہیم السنہ سے کتاب الصیام یا روزوں کے مثال، اس پر ہم نے اس سے پچھلی 2 مجلس جو ہیں وہ گزر چکی، اور آج اس سلسلے کی تیسری مجلس اس کتاب کے بارے میں، اور اوورآل ہماری چوتھی مجلس جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے اور کنٹینیو کریں گے ہم روزوں کے مسائل سے متعلق، جو وہاں پر ہم نے پچھلے مجلس میں سلسلہ منقطع ہوا تھا، اس سے آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آہ، اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم نے اپنی پچھلی مجلس میں جو 2-3 چیپٹرز دیکھے تھے، اس میں چاند دیکھنے کے مسائل اور نیت اور سحری اور افطاری سے متعلقہ کچھ اہم نکات جو ہیں ان کو ہم نے، یہ 3 چیپٹر جو ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے اپنی پچھلی مجلس میں۔ آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے، اور چیپٹر نمبر 9 جو کہ نماز تراویح کے مسائل، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آج کچھ انفارمیشن یا کچھ معلومات یا کچھ نصیحت جو اس کتاب میں ہمیں نقل کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اس کو ہم جتنا آج ہم کور کر سکیں انشاءاللہ، اور غالباً کل اور پھر اس کے بعد اگلے ہفتے میں اتوار اور سوموار 2 مزید مجلس جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے کہ ہم اسی سلسلے میں کریں گے۔ اس کے بعد پھر رمضان المبارک کی بریک ہوگی۔ رمضان المبارک میں آپ یقیناً سب کے اپنے اپنے ٹائم شیڈیولز ہوتے ہیں، تو پھر رمضان کے بعد پھر ہمارے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو ابھی آج ہم چیپٹر نمبر 9 جو ہے صلاۃ التراویح یا نماز تراویح کے مسائل، اس سے ہم آج اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ نماز تراویح، یہ در حقیقت یہ ایک اختلاف اس میں
काफ़ी सारा जो है वो इस मौजू में हमें मिलता है। दरअसल इसमें इख्तलाफ नहीं, इल्मी तौर पर मुख्तलिफ राय जो है वो मुख्तलिफ तबका फ़िक्र की हमें मिलती है। यहाँ तक इख्तलाफ तो बाज़ दफ़ा, या राय में इख्तलाफ जो है वो तो बाज़ दफ़ा इस कदर बढ़ जाता है कि कहते हैं कि तरावी जो है वो तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ ही नहीं, और तरावी जो है वो तो है ही नहीं बिल्कुल असल ही। तो ऐसे बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ साथ ऐसे मसाइल में उलझना जो है, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं। नमाज तरावी एक टर्म जो है वो कह लें कि एशिया में या बाद के ज़मानों में ईजाद कर ली गई, या नाम उसको रख लिया गया, जो कि आम दिनों में जो तहज्जुद की नमाज या क़यामुल लैल, या अक्सर कहते हैं कि नहीं ये तरावी जो है नहीं, ये तो क़यामुल लैल है। तो बहरहाल, और इसकी रिकात में भी बहुत ज़्यादा बहस जो है वो छिड़ती है कि इसकी रकात जो है वो 8 रकत नमाज तरावी होनी चाहिए या 20 रकत होनी चाहिए। तो ये भी एक मसला जो है, ये भी इस कदर शिद्दत के साथ या इस कदर इख्तलाफ जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये दीन में बहुत सारी गुंजाइशें हमें दी हैं, बहुत सारी सहूलतें हमें अता की हैं। हमें तो इस कदर इसमें आसानियां हैं कि आज हम एक रिवायत या हदीस पढ़ेंगे कि अगर कोई अगर कोई मतलब नमाज में खुशू नहीं रख सकता, या वो थकावट का शिकार है, या वो सुस्ती और काहली का शिकार है, तो उसे चाहिए कि वो नमाज जो है उसको मौखर करे। ये नफल नमाज की बात हो रही है कि नफल नमाज जो है उसको मौखर करे और थोड़ा सा ताज़ा दम होकर पढ़े, ताकि पूरे तसल्ली और पूरी खुशू के साथ वो नमाज जो है वो अदा कर सके। और ये मसला जो है, ये मसला ना सिर्फ आज का है, बल्कि शुरू के ज़माने से चलता आ रहा है। लेकिन शुरू के ज़माने में इस तरह के एक दूसरे के साथ शिद्दत, और इस तरह से एक दूसरे के साथ सख्त ज़ुबान में या सख्त अल्फाज में मुखालफत करना, उसका किसी किस्म का हमें कोई रिवाज नज़र नहीं आता। हमारे सहाबा कराम और बाद में हमारे जो आइमा कराम है और हमारे असलाफ जो हैं, उनमें भी बहुत थोड़ी बहुत इख्तलाफ रहा है। लेकिन वो इस कदर शदीद नहीं था जितना आजकल जो है वो उसको उछाल दिया गया है। लिहाजा एक दूसरे के जो नज़रियात हैं या एक दूसरे के जो मामलात हैं उनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन जो है हमें बहुत सारी आसानियाँ सिखाता है। क्योंकि असल मकसद जो है वो रमज़ान में रमज़ान के से ज़्यादा बरक़ात हासिल करने का है। और ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात हासिल करने में हमें पता चलेगा कि नमाज तरावी जो है वो एक बड़ा ही अहम एक इबादत है, जिसके ज़रिए से हम बेशतर हिस्सा जो है रमज़ान का वो बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं। रातों का औकात जो है तो इसको आमतौर पर क़यामुल लैल जो है वही कहा जाता है, और उसमें रकात की तादाद जो है वो ज़्यादा अहम नहीं, बल्कि खुशू और कुरान की तिलावत और इत्मीनान कल्ब जो है वो सबसे ज़्यादा अहम होना चाहिए। किसी को अगर 8 रकात पढ़ के अपना इत्मीनान कल्ब हासिल होता है तो वो उसमें हासिल करे। किसी को 18 पढ़ के, 20 पढ़ के, 36 तक की भी हमें इसमें मिलती है मुख्तलिफ रिवायात में। तो बहरहाल हमें इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इख्तलाफ में नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेरी एक ज़ाती राय भी है। बहुत सारे जो उलमा है या बहुत सारे जो लोग जो एक दरमियानी या मोतदल बात करते हैं, उनकी भी ये राय है कि इसमें हमें बहुत शिद्दत के साथ इख्तलाफ जो है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादा हमारी तवज्जो जो है वो हमारे खुशू और हमारी नीयत और इखलास की तरफ होनी चाहिए। और जिस कदर हम अपनी हिम्मत जो है वो दिखा सकें, उसके मुताबिक हमें इसमें अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर लेना चाहिए इस पूरी इबादत में। तो नमाज तरावी या क़यामुल लैल, इसके बारे में कुछ मसाइल जो हैं उनका तज़किरा हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर मसला है, मसला नंबर 48 यहाँ पर लिखा गया, नमाज तरावी या क़यामुल लैल जो है वो गुज़श्ता सगीरा गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा की ये रिवायत है, बुखारी में, ये बुखारी से नकल की गई यहाँ पर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये एक अहम मतलब एक ऑफ़र है हमारे लिए
کہ رمضان کے دوران نماز جو ہے قیام اللیل جو ہے یا رات کا قیام جو ہے، جس نے اس کا اہتمام کر لیا ثواب کی نیت سے، پورے دل کے اچھے ارادے اور نیت کے ساتھ، تو گویا کہ اس کے سارے گزشتہ جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ جو ہیں، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب بھی گناہ معاف کر دیے جاتے کے ساتھ صغیرہ کا اکثر اضافہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان کی تو توبہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی سزا وغیرہ جو ہے اگر ہے تو وہ بھی اپنے اوپر قبول کرنا، وہ توبہ اور اس کی شرائط جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ البتہ صغیرہ گناہ جو مطلب جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، تو ان کا ہمیں تذکرہ جو ہے وہ اکثر ایسی روایات میں ملتا ہے۔ تو بہرحال جس نے قیام اللیل کا یا نماز تراویح کا یا رمضان میں ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کا اہتمام کیا، تو اس کے سارے گزشتہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے کہ ہمارے زندگی میں یہ رمضان آئے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، انشاءاللہ آمین۔ آگے قیام رمضان یا نماز تراویح یا قیام اللیل، باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا ہی دوسرا نام ہے۔ اس بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف کیا جاتا ہے کہ تہجد یا قیام اللیل جو ہے وہ الگ ہے اور نماز تراویح الگ ہے، جبکہ یہ جو ہے یہ دونوں ایک ہی نماز کا نام ہے، اور جو ہمیں سنت سے یا احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو جو عام دنوں کا جو تہجد ہے وہی رمضان میں قیام اللیل کے نام سے یا نماز تراویح کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے نماز تراویح یا تہجد یا قیام اللیل کی مسنون رکعتیں جو ہیں وہ 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے اتنی پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ روایت یا یہ مسئلہ جو ہے یہاں پر ہمیں حل رکھنا چاہیے، کم از کم ہمیں اس طرح کے کسی اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کوئی اگر مطلب ایسی شدت کے ساتھ باتیں کرتا بھی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سمجھانا چاہیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں اتنی شدت جو ہے وہ مناسب نہیں۔ آپ کو اگر 20 پہ زیادہ مطلب آپ کو تسلی ہوتی ہے آپ کے دل کو، تو آپ 20 پڑھ لیں، آپ کو 8 پہ تسلی ہوتی تو آپ 8 پڑھ لیں، لیکن خشوع کے ساتھ، نیت کے ساتھ اور بہترین انداز میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال یہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے جو کہ حضرت بخاری اور مسلم میں یہ منقول ہے یہ روایت، اور یہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یا غیر رمضان کی رات کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یا غیر رمضان میں رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے، ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر عطا فرماتے، جیسے بخاری اور مسلم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون جو ہے وہ طریقہ جو نماز تہجد کا ہے، کیونکہ نماز تراویح یا قیام اللیل یا باجماعت نماز جو ہے جس کو ہم پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہوا دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ایک بہترین، ایک حسین ترین ایک مطلب چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ رمضان کا قیام اللیل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باجماعت اس طرح سے ادا نہیں کیا کہیں یہ فرض ہی نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 3 دن جو ہے اس کا اہتمام کیا۔ ادروائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ قیام اللیل یا رات کا قیام یا تہجد کی نماز یا رمضان میں جو نماز تراویح جس کو کہہ لیں، تو وہ جو ہے وہ 11 رکعت ہی تھی، اس میں سے 8 رکعت جو ہے وہ نوافل تھے، اور 3 رکعت جو ہے وہ وطر، اور 8 رکعت جو ہے وہ بھی 2 2 رکعت کر کے نماز ادا کرتے۔ پہلے 2 رکعت نفل، نفل بھی ہماری آسانی کے لیے ہم نے ٹرم جیسے ایجاد کر لی کہ نفل ہیں، جبکہ جب ہم مطلب یہ احادیث کو دیکھیں گے یا دیگر مطلب اس کی طرف دیکھیں گے تو اس میں نماز کا ہی تذکرہ آتا ہے، 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز، ٹھیک ہے؟ تو وہ نفل جو ہے یا سنت جو ہے وہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے اس میں کر لیا کہ ٹھیک ہے، نفل نماز جو ہے وہ فرض کے علاوہ ہے، سنت جو ہے وہ فرض کے علاوہ ہے۔ تو اسی طرح تراویح جو ہے وہ ایک ٹرم ہے، تو لہذا وہ 2 رکعت پہلے نفل ادا کرتے
उसके बाद फिर दो रकत नफल अदा करते, और इन दो दो रकतों की चार रकत जो है उनका तूल और हुस्न का क्या कहना है, यानी बड़ी तवील और बड़ी मतलब खुशू के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ वो चार रकत जो है, तवील रकात जो है वो अदा करते। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा रुकते या थोड़ा सा आराम करते या थोड़ी देर ठहरते चार रकत के बाद। उसके बाद फिर दोबारा से दो रकत करके चार रकत जो है वो उसी तरह से फिर नमाज अदा करते। उस वो भी बड़ी तवील होती और बड़ी हसीन नमाजें होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का हुस्न जो है वो कौन उसका अंदाजा भी कर सकता है बाहर। और आठ रकत के बाद फिर वो तीन रकत वितर अदा करते, और तीन रकत वितर जो है वो भी दो रकत जो है वो पहले अदा करते वितर के, और फिर तीसरा जो है वो अलग से अदा करते, और फिर उसमें दुआ जो है वो भी पढ़ते, दुआ कुनूत। तो ये हमें रिवायत जो है वो मिलती है 11 रकत की मसनून। इसके अलावा जो हमें रिवायात मिलती हैं कि जिसके अलावा जितना कोई कर सके, जितनी को रात को इबादत कर सके वो उसको कर ले, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, इख्तलाफ वाला मामला नहीं है। नमाज तरावी का ये वक्त इशा के बाद से लेकर तुलुए फजर तक है। नमाज तरावी दो दो रकत पढ़ना अफजल है, और वितर की एक रकत अलग से पढ़ना मसनून है। नमाज जो है वो दो दो रकत ही है, जो सिर्फ फर्ज नमाज जो है उसमें कुछ नमाजें हैं फर्ज, जैसे कि जोहर की है या असर की है या मगरिब की है या इशा की है। जोहर असर और इशा जो है वो चार रकत जो है वो फर्ज अदा की जाती है एक साथ, दो तहज्जुद के साथ या दो बैठने के साथ। और इसी तरह से जो मगरिब की है वो तीन रकत एक साथ नमाज अदा की जाती है। उसके अलावा जितनी नमाजें हैं वो ज़्यादातर, वो अच्छा तरीका जो है वो दो दो रकत नमाज अदा करना ही बेहतर है। तो इस वितर की एक अलग नमाज पढ़ना, और उसका वक्त जो है वो रात की शाह से लेकर सुबह तुलुए फजर तक है, या अजान से पहले तक, जैसा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम से यहाँ पर नकल की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा और नमाज फजर के दरमियान 11 रकतें नमाज अदा करते, हर दो रकत के बाद सलाम फेरते, फिर सारी नमाज को एक रकत से वितर बनाते, यानी दो दो रकत करके पहले 8 रकात जो है वो कहने के तहज्जुद की नमाज के, फिर दो रकत प्लस एक रकत, तीन रकत जो है वो वितर जो है वो अदा करते, दो रकत अलग और एक रकत जो है वो अलग। और उसके अलावा रिवायात से हमें तीन रकत इकट्ठी जो है वो भी हमें मिलता है, एक सलाम और एक तहज्जुद के, एक सॉरी तशहद के साथ। वो आगे जाकर हमारे सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सिर्फ 3 दिन नमाज तरावी बा जमात पढ़ाई, और इसी तरह से खवातीन या फैमिली बच्चे समेत जो है वो भी मस्जिद में आकर नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं। खवातीन का मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना हमारा एक बड़ा एक फिरका या ग्रोह जो है, या एक बड़ा बड़े कुछ बहुत सारे लोग जो है वो इसको भी पसंद नहीं करते, या इसमें भी थोड़ा सा वो इख्तलाफ करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि हमें अहादीस से या रिवायात से यह मिलता है कि मस्जिद में जाकर औरतें जो है वो नमाज अदा कर सकती हैं, बल्कि औरतों को मस्जिद में जाकर नमाज बाजमात जो है वो अदा करनी चाहिए जब भी जहाँ भी मौका मिले, खासकर जुम्मा के दिन। या उसके अलावा रमज़ान में तो एक बेहतरीन मौका रहता है जहाँ पर खुसूसी इंतजाम जो है वो किए जाते हैं। इसके बारे में ये एक रिवायत तिरमिज़ी में जो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज तरावी नहीं पढ़ाई, यानी बाजमात नमाज तरावी नहीं पढ़ाई, यहाँ तक कि रमज़ान के 7 दिन बाकी रह गए। 23वें रोज़े यानी 23rd ऑफ रमज़ान जो है, तो 23वें रोज़े की रात, 10वीं रात कि एक तिहाई गुजर जाने के बाद, यानी एक तिहाई रात के शुरू हिस्से में ही थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने नमाज तरावी पढ़ाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24वीं शब को नमाज तरावी नहीं पढ़ाई। फिर 25वीं शब को आधी रात गुजर जाने पर नमाज तरावी पढ़ाई। फिर हमने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही अच्छा होगा अगर आप रमज़ान की बाकी रातों में भी हमें नफल नमाज पढ़ाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इमाम के फारग होने तक इमाम के साथ क़याम किया, यानी नमाज तरावी बाजमात अदा की, उसके लिए सारी रात क़याम का सवाब लिखा जाएगा। तो ये बाजमात जो क़यामुल लैल जो है या तरावी जो है उसको अदा करने के एक फजीलत जो है वो हमें मिलती है कि जिसने
मतलब इमाम के साथ पूरी नमाज बाजमात अदा की, उसने गोया सारी रात ही क़याम किया, उसका सवाब हासिल कर लिया। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज तरावी नहीं पढ़ाई, हत्ता कि 3 रोज़ बाकी रह गए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तीसरी मरतबा 27वीं शब तरावी पढ़ाई, जिसमें अपने अहले और याल को भी शामिल किया, यहाँ तक कि हमें फलाह के ख़त्म होने का डर हुआ। मैंने अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि फलाह क्या है, तो हज़रत अबू ज़र ने जवाब दिया कि सहरी, ये यानी सहरी का वक्त जो है ये फलाह है। अब इस हदीस को भी अगर हम डिटेल से देखें तो इसमें हमें बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे ऊपर वाज़ेह हो जाती हैं। एक तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी जो है वो बाकायदा बड़ी मतलब उसका एहतमाम करके मुसलसल नहीं पढ़ाई, बल्कि सिर्फ 3 दिन पढ़ाई। और वो 3 दिन भी जो है वो भी मुसलसल नहीं पढ़ाई, बल्कि उसमें भी पहले 23वीं 23rd को, फिर 25वीं रात को, और फिर 27वीं रात को पढ़ाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया, लेकिन उन्होंने फिर उसको मुसलसल इस तरह से क़याम करने से या बाजमात पढ़ाने से नहीं पढ़ाया उन्होंने। और उसकी हिकमत जो हमें उलमा बताते हैं वो यही कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते तो कहीं कहीं वो फ़र्ज ही ना हो जाए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो नमाज तरावी के औकात जो हैं वो इससे हमें अंदाज़ा होते हैं कि पहले सबसे पहले जो उन्होंने बाजमात पढ़ाई वो वो 1/3 गुजर जाने के बाद, यानी कि रात के शुरू में ही उन्होंने इशा की नमाज के कुछ ही देर बाद नमाज वो जो पढ़ाई पहली दफ़ा। दूसरी जो उन्होंने पढ़ाई 25वीं की रात को, वो आधी रात गुजर जाने के बाद। और तीसरी जो उन्होंने तीसरी दफ़ा जो नमाज का अहतमाम करके बाजमात उन्होंने अदा की, वो रात के आखिरी पहर में बिल्कुल सुबह सहरी के करीब जाकर वो पढ़ाई। तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि नमाज जो है, नमाज तरावी का वक्त जो है वो रात को इशा के बाद से लेके बिल्कुल सुबह फजर से पहले तक जो है वो होता है। तो ये एक अहम रिवायत है, हमें इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें क्लैरिटी के साथ हमें पता चलती हैं। एक 3 या 5 वितर पढ़ना भी मसनून है। वितरों की तादाद जो है वो उसमें भी हमें ये रिवायात मिलती हैं कि 1 या 3 या 5 रिकत भी वितर जो है वो पढ़ा जा सकता है। एक कम से कम एक वितर जो है वो तो पढ़ना ज़रूरी है। वितर का तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। वितर और सुबह की जो फर्ज से पहले जो 2 सुन्नतें हैं, ये 2 सुन्नत रकात जो हैं, एक तो सुन्नत मौक़दा जो फजर के साथ फजर की नमाज से पहले हैं या फजर की हैं, और उसके अलावा वितर, ये 2 नमाजें जो हैं ये तो इतनी ज़्यादा पसंदीदा हैं फ़र्ज के बाद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सफ़र के दौरान भी नहीं इनको छोड़ा, इनको इनका अहतमाम किया। तो लिहाजा ये 2 नमाजें जो हैं उनको हमें ज़रूर, उसके अलावा सुन्नत मौक़दा जितने हैं वो तो हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए। नवाफल तो अपनी हिम्मत के मुताबिक जितने ज़्यादा हम पढ़ सकें। बहरहाल वितर जो है वो 1 3 या 5, जितनी किसी को कोई इस्तात या उसको मतलब हो पसंद हो वो पढ़ सकता है। हज़रत अबू यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर पढ़ना हर मुसलमान के ज़िम्मे है। जो पसंद करे वो 5 पढ़े, जो पसंद करे वो 3 पढ़े, और जो पसंद करे वो 1 पढ़े। तो वितर जो है वो भी, उसकी तादाद जो है वो भी 3 या 5 या 1 है। जितनी कोई पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। इसी तरह से आगे, एक तशहद और एक सलाम के साथ 3 वितर पढ़ना मसनून है। वितर अदा करने के मुख्तलिफ जो तरीके जो है वो हमें मिलते हैं, वो सारे के सारे ही हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो क्योंकि हमें उनमें किसी न किसी रिवायत में कुछ ना कुछ आसानियाँ जो है वो मिलती है। जैसे कि पहले हमने एक हदीस में हमने देखी थी। हाँ, ये हदीस में हम देखें कि वो हर 2 रकत के बाद सलाम फेरते, फिर अपनी नमाज को एक वितर के साथ, एक रकत के साथ वितर बनाते। यानी ये 11 रकत जो नमाज अदा करते थे उसमें 8 रकत नवाफल के और 2 रकत वितर के अलग, फिर एक रकत जो है वो वितर का अलग पढ़ते थे। और इसी तरह से आगे जाकर इस चैप्टर में या इस बाब में हम देखेंगे एक तशहद और एक सलाम, सलाम के साथ 3 वितर पढ़ना। यानी पहली दूसरी, आम तौर पर दूसरी रकत के बाद तशहद के लिए बैठा जाता है और फिर तीसरी रकत शुरू की जाती है। लेकिन नमाज वितर में
दूसरी रकत के बाद बैठना तशहद के लिए वो नहीं, बल्कि खड़े होकर डायरेक्ट तीसरी रकत अदा करना, और तीसरी रकत में फिर वतर की दुआ जो है वो भी पढ़ना, और फिर एक ही तशहद और एक ही सलाम के साथ वितर पढ़ना, ये मसनून है। तो इसके अलावा कुछ और भी हमें तरीके जो हैं वो राइज मिलते हैं, जैसा कि मगरब की तरह ही नमाज पढ़ी, दूसरी रकत में के बाद तशहद भी किया, और फिर तीसरी रकत में नमाज कनूत जो है, सॉरी, दुआए कनूत जो है वो पढ़ी, चाहे रुकू से पहले पढ़ें या रुकू के बाद पढ़ें। तो उससे भी हमें मगरब की नमाज से मुशाबत जो है वो जाती रहती है, वो अक्सर उलमा का ये ख्याल है। लेकिन जो हमें सही मसनून तरीका जो मिलता है, अगर हम उसको फॉलो कर लें तो हमारे हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसी तरह से नमाज वितर में पहली रकत में सूरह आला, दूसरी रकत में सूरह काफिरून, और तीसरी रकत में सूरह इखलास पढ़नी मसनून है। ये तो इसमें तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। हजरत अबी काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की 3 रकतों में सब में से पहली में सूरह आला, दूसरी में सूरह काफिरून, और तीसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ा करते थे, और सलाम आखिरी यानी तीसरी रकत में ही फेरते थे। या ये इस रिवायत से तीनों रकात जो हैं वो एक साथ एक ही तशहद और एक ही सलाम के साथ पढ़ने का हमें इसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा नमाज मगरिब की तरह दो तशहद के साथ एक सलाम से तीन वितर अदा करना, या दो तशहद और एक सलाम के साथ तीन रकत जो है वो अदा करना, वो दुरुस्त नहीं। लेकिन अक्सर जो है उलमा या कुछ उलमा का ख्याल ये है कि क्योंकि वहाँ पर सलातुल मगरब या मगरब की नमाज से मुशाबत के बारे में तज़किरा है कि मगरब की नमाज से मुशाबत ना करो, 3 रकत अगर पढ़ने हैं वितर की, तो उसमें वो कहते हैं कि क्योंकि उसमें दुआए कनूत जो है वो शामिल कर ली जाती है, तो उससे तो नमाज मगरब जो है उससे मुशाबत ख़त्म हो जाती है, तो लिहाजा वो तरीका भी ठीक है। तो वो जो अगर आपको उसके ऊपर तसल्ली होती तो आप उस तरह से देख लें, अदरवाइज जो हमें रिवायात मिलती हैं उसके मुताबिक ही हम ये कर लें तो बेहतर है। या तो तीनों रकत एक साथ अदा करके एक ही तशहद और एक ही सलाम के साथ हम वितर अदा कर लें, या 2 रकत नमाज अदा करके सलाम फेर कर फिर तीसरी रकत जो है वितर की वो सेपरेट जो है वो अदा कर लें, और फिर तीसरी रकत जो है वितर की उसमें दुआए कनूत जो है उसका अहतमाम कर लें। तो ये मेरा ख्याल है ये कोई मुश्किल अमर नहीं है, अगर हम इसको फॉलो कर लें तो। उसके बाद वितरों में दुआए कनूत जो है वो रुकू से कबल और बाद दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। दुआए कनूत जो है वो जिस भी अंदाज में आपको सहूलत हो आप पढ़ सकते हैं। अगर रुकू से पहले पढ़ना है तो उसी तरह से हाथ बांधे बांधे या अल्लाह अकबर कह के हाथ को कर दोबारा से हाथ बांध कर दुआए कनूत जो है वो पढ़ ली जाती है। या अगर रुकू के बाद पढ़ना है तो रुकू के बाद रुकू से खड़े होकर फिर दुआ की तरह हाथ उठाकर दुआए भीतर जो है वो पढ़ ली जा सकती है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दुआए कनूत के बारे में दरियाफ्त किया गया, तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद दुआए कनूत पढ़ी, और एक रिवायत में है कि रुकू से पहले और बाद दोनों तरह से पढ़ी। तो दोनों तरह से हमें इसका मिलता है नमाज में दुआए कनूत पढ़ने का तज़किरा। और नमाज की दुआए कनूत जो है वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को सिखाई, नमाज दुआ जो वितर में पढ़ने के लिए दुआ है, सबसे आम दुआ जो है वो यही है, अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत वकिनी शर्रा मा कदैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला युज़िल्लु मन वलैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआलैत। तो ये दुआ तो यकीनन सबको पता होगी। इसके अलावा कुछ दूसरी दुआएं जो हैं वो भी अ, हमें मिलती हैं। तो बहरहाल जो दुआए कनूत में भी आप जो भी दुआ जो है वो मसनून याद करें और उसका अहतमाम करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से रमज़ान में कुरान मजीद के बारे में कि 3 रात से कम में कुरान करीम ख़त्म करना नापसंदीदा है, इसके बारे में भी उलमा जो है वो अपनी राय जो है वो देते हैं। कुछ उलमा जो है उनका ख्याल है कि ये जो लिमिटेशन है कि 3 रात से कम वक्त में कुरान करीम ख़त्म करना नहीं करना चाहिए, ये जो आम दिनों की बात है, रमज़ान तो है ही कुरान का महीना, तो लिहाजा रमज़ान में तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान जो है वो उसको उसके साथ पढ़ना और उसका समझना जो है। अलबत्ता ज़रूरी ये है
کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کو بالکل مطلب الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ کس کس انداز سے مطلب پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں، یہی بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ رمضان غیر رمضان کے لیے ہے کہ تین رات سے کم میں نہیں پڑھنا، اپنا پسندیدہ ہے۔ لیکن رمضان میں تو آپ جس قدر بھی اس کا اہتمام کر سکیں وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، مناسب ہے، بلکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک جو ہے رائے جو ہے وہ مختلف علماء جو ہے وہ ان کا ایک مختلف رائے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال یہ رائے جو ہے یہ تو کامن ہے کہ جتنا بھی ہم کریں وہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ افضل ہے یا زیادہ بہترین ہے۔ اب قرآن کو پڑھنے کے بارے میں یا کسی بھی فیلڈ کے بارے میں مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کا رجحان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی مختلف لوگ مختلف طرح کا رجحان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا میلان جو ہے وہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اور بڑے سنوار کر اس کو پڑھنا جائے، اس میں ان کو بڑی تشنگی ملتی ہے، بڑی ان کو اطمینان ملتا ہے، تو وہ اس میں کوشش زیادہ کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سارے یہی کوشش کریں۔ کچھ لوگ جو ہیں جو تفسیر وغیرہ پڑھ کر ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں جب، تو ان میں ان کو بڑی ایک اطمینان قلب ملتا ہے اور ان کا دل کرتا ہے کہ یہی ایک بہترین طریقہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ عربک لنگوسٹ کو گرامر کو بڑا پسندیدہ جانتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ بڑی ان کی وہ ایک دلی تشنگی ان کو ملتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سارے بھی ایسا کریں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو قرأت کرنا جو ہے اچھے الفاظ، اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں، وہ ان کو بڑا پسندیدہ ہے اس کے لیے۔ تو لہٰذا جس بھی انداز سے کوئی کوشش کرے، اپنی کوشش جو ہے وہ بھرپور انداز سے کرے، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے لیے تھوڑا سا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ کوئی اگر فرد جو ہے وہ قرآن مجید کو بس ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہی زیادہ پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پڑھتا رہے، لیکن اس کو اچھے انداز میں پڑھے، اور تھوڑا سا وقت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضرور نکالے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے قرآن مجید بس ایک ارادہ کر لیا کہ میں نے تو ایک رمضان میں اس دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 7 دفعہ قرآن مجید ختم کرنا ہے، اور وہ پھر دت گیا اس میں۔ تھوڑا سا وقت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تھوڑا سا وقت جو ہے اس کو پرکھنے کے لیے بھی ضرور جو دینا چاہیے۔ تو مختلف انداز سے ہم قرآن مجید کو اس رمضان میں ہم انشاءاللہ اپنے عبادات میں شامل کریں گے۔ تو اپنی اپنی سہولت کے مطابق ضرور اس کے ساتھ جڑے رہنا جو ہے، اور مطلب مضبوطی کے ساتھ جڑنا جو ہے، اور اس انداز سے جڑنا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے اندر باقی رہے۔ تو یہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ اس پر دینی چاہیے۔ سجدہ تلاوت کی مسنون دعا، جو رمضان میں جب قرآن مجید جو ہے وہ بار بار پڑھا جاتا ہے تو اس میں سجدہ تلاوت جو ہے وہ بھی ایک روٹین کی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو سجدہ تلاوت کی جو مسنون دعا ہمیں ملتی ہے حدیث میں: سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اور اس کے علاوہ فتبارک اللہ احسن الخالقین کے الفاظ جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں کچھ روایات میں۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں یقیناً یاد ہوگی۔ تو جب بھی ہم یہ، کیونکہ وہ فرض نہیں ہے، سجدہ تلاوت جو ہے وہ فرض نہیں، وہ سنت ہے، لیکن اس کو ادا ضرور کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں بھی ایک لمبی بحث ہے، اس لمبی بحث میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ مطلب لمبی بحث سے مطلب یہ کہ بہت سارے موضوع اس کے نکلتے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے وہ پورے موضوع تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن یہ ایک عام جو سمجھ جو پائی جاتی ہے کہ سجدے جو ہیں، قرآن سجدہ تلاوت جو ہے اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سجدہ تلاوت کے دوران جب سجدہ تلاوت کی آیت آئے گی تو اسی وقت اگر ممکن ہے تو سجدہ کر لیا جائے، اگر ممکن نہیں ہے تو نہ بھی کیا جائے، تو کوئی ایسا گناہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعد میں اس کو مؤخر کر دینا کہ فری ہو کر یا بعد میں کسی وقت میں اس کو سجدہ تلاوت جو ہے وہ کر لیں گے، تو یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جب سجدہ تلاوت کی آیت گزرے اس وقت اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو سجدہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم اشارے سے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، صرف سر تھوڑا سا جھکا کر۔ اس کے لیے وضو کی بھی 100% کوئی شرط نہیں ہے، ہاں پاکیزگی کے بغیر تو قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن مجید قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔ یہ بھی ہمیں رمضان میں اکثر آتا ہے کہ اگر مطلب باجماعت نماز نہیں، یا باجماعت نماز کے علاوہ بھی اگر اور نوافل کی ہمیں طلب ہو، اور اگر ہم کرنا چاہیں یا گھر میں اپنی فیملیز کے ساتھ، تو اس میں
बाजमात नमाज का अहतमाम करें। और लंबी किरत अगर करनी है या लंबी रकात जो है वो अदा करनी है, तो उसमें फिर आम तौर पर कुरान मजीद जो है वो आम कारी को ज़्यादा याद नहीं होता। तो नवाफल जो है, फ़र्ज में नहीं, नफल नमाजों में कुरान मजीद को खोल कर उससे देकर तिलावत जो है वो की जा सकती है, ये करना जायज़ है। ये बड़ा एक अहम मसला है रमज़ान में। इसका हम एहतमाम जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ग़ुलाम ज़कवान कुरान करीम से देख कर नमाज पढ़ाया करता था। ये बुखारी की रिवायत हमें मिलती है। तो कुरान मजीद से देख कर तिलावत करना, वो लेकिन उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किसी अच्छे अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत की जाए। और कि ज़ाहिर है क़याम के दौरान ही कुरान मजीद को हाथ में पकड़ना है, और उसके अलावा उसको बंद करके या रखना है और फिर अगली रकत में दोबारा से उसको खोलना है। तो थोड़ा सहूलत के लिए उसकी निशानी वगैरह या जो भी आजकल मोबाइल डिवाइसेस पे भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसका इस्तेमाल करके अगर हम इस तरह से अपने खुशू के साथ नमाज अदा कर सकें तो ज़रूर हमें करनी चाहिए। अगला, नफली इबादत इबादत में जब तक शौक और रगबत रहे करते रहना चाहिए। तकलीफ या थकावट महसूस हो तो छोड़ देना चाहिए। और इबादत में एतदाल पसंदीदा है, एतदाल जो है वो पसंद है। ये भी एक बड़ा अहम है कि नफली इबादत में जब तक शौक और रगबत रहे तो नमाज करते रहना चाहिए। तकलीफ या थकावट महसूस हो तो छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने से मतलब ये है कि थोड़ा सा आराम कर लेना, या थोड़ा सा थोड़ी देर बाद जो है वो कर लिया जाए, या अगले दिन डाल दिया जाए किसी दिन। मसरूफियत की वजह से या ज़्यादा काम की थकन की वजह से अगर कोई ऐसी कैफियत तारी हो जाए, तो फिर अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। उसकी वजूहात जो हैं, उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। कि एक तो अपने मुश्किल इस तरह से भी हो सकती है कि मतलब थकावट की वजह से मतलब चूर है, या मतलब वैसे ही सुस्ती इस कदर ज़्यादा है, और नमाज के लिए खड़े हैं और बोझ महसूस हो रही है नमाज के, क्या हमने नमाज अदा करनी है, और फिर नमाज में दिल भी नहीं लगता। तो इस तरह से शैतान को दावत देने की बजाय कि आओ मुझे और ज़्यादा उकसाओ कि मैं इस तरह की अपनी सोच रखूं, या इस तरह से अपना अपना जो मेरे जहन में ख्यालात हैं, इससे बेहतर ये है कि आप आराम करें और रिलैक्स होकर फ्लेक्सिबल कंफर्ट के साथ आप शौक और रगबत के साथ नमाज जो है वो अदा करें। वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि अपने दिल जहन जो है वो उसको उलझा कर इस तरह के जो वसवसे और इस तरह के ख्यालात जो है वो आपके जहन में आए। हज़रत अनस रज़ील्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफल नमाज अपनी तबीयत की खुशी और शौक के मुताबिक पढ़ो। जब तबीयत थक जाए तो बैठ जाओ। ये बुखारी और मुस्लिम से रिवायत है। इसी तरह से हज़रत आयशा रज़ील्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी हिम्मत के मुताबिक इबादत करो। अल्लाह ताला अजर देते हैं, कभी अजर देते कभी नहीं थकता, जबकि तुम इबादत करते करते थक जाते हो। तो यानी ये अपनी हिम्मत है अजर जो है वो कलेक्ट करने की, कि कितने अजर हम कलेक्ट कर सकते हैं। जितनी हिम्मत है हम में, वो इतने हम अजर जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला तो अजर देने में नहीं थक जाते। इसी तरह से आगे ये जो रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, बुखारी और मुस्लिम से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम फलां आदमी की तरह ना हो जाना जो रात को इबादत के लिए उठा करता था, फिर उसने उठना छोड़ दिया। ये एक अहम पॉइंट है हमारे लिए, कि कुछ बाज़ दफ़ा बड़े जज्बात में आकर और बड़े जोश और जज्बे में आकर इस तरह से इबादत का एक गुबार जो है वो उठता है, लेकिन अचानक से वो गुब्बारे की तरह से फटता है, और फिर वापस उसी तरह से। ये ऐसा नहीं, बल्कि इस बड़ी सोच समझ और तदब्बर के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ हमें इबादत जो है वो करनी चाहिए। ये जो रिवायत में जिसका तज़किरा है, ये गालिबन कोई ऐसा फर्द है जिसने बड़े जोश और जज्बे के साथ इस तरह से शुरू किया, बगैर सोचे समझे या बगैर किसी मतलब लंबी प्लानिंग के, और जल्द ही थक थक गया, और जल्द ही उसने ऐसा करना जो है वो छोड़ दिया। तो लिहाजा हमें जज्बात की कैफियत में नहीं, बल्कि बड़े फहम के साथ और बड़े तदब्बर के साथ और बड़े समझदारी के साथ जो है वो हमें अपनी इबादत का अहतमाम जो है वो ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रोज़ों में रुख्सत के मसाइल। रोज़ों में रुख्सत यानी कौन कौन सी ऐसी वजूहात या मसाइल या मामलात हो सकते हैं जिसमें रोज़े छोड़ देना जो है वो दुरुस्त है। रोज़े अगर छूट जाएं या छोड़ दिए जाएं तो कोई उसमें नहीं, हाँ अलबत्ता उसकी कज़ा जो है वो ज़रूर देना होगी। कज़ा का मतलब है कि बाद में
दूसरे दिनों में, रमज़ान के बाद दूसरे दिनों में वो रोज़े जो हैं वो पूरे कर लिए जाएं। और उसमें सबसे पहले सफ़र में रोज़ा रखना और छोड़ना दोनों दुरुस्त है। सफ़र अगर हो तो सफ़र के दौरान रोज़ा रखा भी जा सकता है और रोज़ा छोड़ा भी जा सकता है। अगर आपके पास हिम्मत ताकत है और सफ़र जो है वो आसान है और ज़्यादा मुश्किलात उसमें नहीं है, तो रोज़ा रख लें जो बेहतर है। अगर इसके बावजूद रोज़ा अगर छोड़ना चाहे तो उसके लिए आसानी है। हाँ, अगर सफ़र की मुश्किलात हों तो उसमें फिर अगर आपको लगता है कि रोज़ा मुमकिन है कि पूरा ना हो या कुछ मसाइल ऐसे आ जाएं, तो ऐसी सूरत में रोज़ा जो है वो छोड़ा भी जा सकता है और छोड़ देना जाए, बल्कि वो छोड़ ही देना जो है वो बेहतर है। अगर ऐसी कैफियत हो, उसके बारे में भी हम जाके जाकर एक रिवायत देखेंगे। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। हज़रत हमज़ा बिन अम्र असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं सफ़र में रोज़ा रखूं? और वो कसरत से रोजे रखने वाले थे, यानी हजरत हमजा बिन अम्र जो हैं, ये कसरत से रोजे रखने वाले थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहे तो रख, चाहे तो ना रख, यानी ये ऑप्शनल है। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहे तो ना रखें, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। इसी तरह से सही मुस्लिम की एक रिवायत हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि हम 16वें रोजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए निकले। हम में से बाज लोगों ने रोजा रखा और बाज लोगों ने रोजा छोड़ दिया। ना रोजादार ने बेरोज पर कोई इतराज किया और ना ही बेरोज ने रोजादार पर कोई इतराज किया। तो ये भी एक बड़ा मतलब सहाबा कराम के दौर में दीन जो है वो किस कदर आसान या किस कदर एक दूसरे को वो सपोर्टिव होते थे कि मतलब जिसने रोजा रखा है उसने बगैर रोजे वाले को कुछ नहीं कहा, और जिसने रोजा नहीं रखा उसने रोजादार को कुछ नहीं कहा। यानी कि एक रूटीन है कि ऑप्शन जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दी, तो उसमें फिर किसी को कोई इतराज करने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता है। अपनी मर्जी है, कोई रखना चाहे तो रख ले, ना रखना चाहे तो छोड़ दे। लेकिन उसकी कज़ा जो है वो बाद में उसको देनी होगी, और कज़ा का बाद में क्योंकि थोड़ा सा एहतमाम करना पड़ता है, तो रमज़ान में ही अगर वो रख ले तो यकीनन जो है वो उसके लिए आसानी होगी, कज़ा में भी आसानी होगी, और फिर उसके रोज़े जो हैं वो भी रमज़ान की बरकत जो है उसका तो एक अलग ही नोयत है। इसी तरह से हैस और नफाज वाली औरत को मज़कूरा हालत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और हैस या नफाज ख़त्म होने के बाद रोज़े की कज़ा अदा करनी होगी। हैस और नफाज की वजह से या दूध पिलाने वाली हामला औरत को रोज़ा न रखने की रुख्सत है, बाद में सिर्फ कज़ा होगी। इसी तरह हामला औरत जो है वो ऐसे दिनों में है अगर जहाँ पर रोज़ा रखना मुमकिन ना हो या बहुत मुश्किल हो जाए, तो ऐसे सूरत में भी रोज़ा जो है वो कज़ा किया जा सकता है। अब कज़ा और कफ़ारा जो है उसमें भी हमें फ़र्क जो है वो अपने रहना चाहिए कि कफ़ारा जो है वो ऐसी सूरत में होगा जब जानबूझकर रोज़ा छोड़ दिया जाए या जानबूझकर कोई गैर शरई ऐसी हरकत हो जाए जिसकी वजह से रोज़ा टूट गया, तो ऐसी सूरत में कफ़ारा जो है वो देना होगा। और कफ़ारा जो है वो है या तो एक गुलाम जो है वो आज़ाद किया जाए। अगर एक गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते तो 60 दिन के 2 महीने या 60 दिन मुसलसल रोज़े रखने हैं, और ऐसे मुसलसल कि अगर उसमें कोई एक रोज़ा अगर छूट गया तो फिर दोबारा ज़ीरो से काउंट शुरू होगा। और कफ़ारा जो है वो तीसरा जो है, अगर वो भी मुमकिन नहीं, 2 महीने के रोज़े रखना भी मुमकिन नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना 2 वक्त का, ये कफ़ारा है। तो कफ़ारा और कज़ा में फ़र्क जो है वो हमें रखना चाहिए कि जहाँ पर कज़ा का लफ्ज़ आया इसका मतलब है कि रोज़ा जो है वो छोड़ दिया या छूट गया किसी वजह से, वो उसके कज़ा जो है उसके बदले में एक रोज़ा रख देना जिस उसकी कज़ा है। लेकिन कफ़ारा जो है किसी गैर शरई अमल की वजह से या जानबूझकर अगर रोज़ा छोड़ दिया या तोड़ दिया, तो ऐसी सूरत में कफ़ारा जो है वो अदा करना होगा। और कफ़ारा जो है वो किस कदर मुश्किल है हमें उसका अंदाज़ा हो गया, तो इसलिए हमें बड़ा एहतमाम के साथ कफ़ारे से बचना चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो जाए। हाँ, कज़ा जो है वो देखें किस कदर आसानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के ज़ाहिर यकीनन एंडोर्समेंट के साथ मुसलमानों के लिए यहाँ पर हमें मिलती हैं। तो बाहर आगे बढ़ते हैं। सफ़र या जिहाद में दुश्वारी के पेश नज़र रोज़ा तर्क किया जा सकता है, और अगर रखा हो तो तोड़ा भी जा सकता है। इसकी सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगी। कफ़र सफ़र और जिहाद में दुश्वारी के पेश नज़र
اب یہاں پر اس میں بھی ہمیں رعایت ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے، یعنی ایک مشن پر نکلے۔ جب مقام قدیر پر پہنچے، تو مقام القدیر پر پہنچے، تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔ تو یہ ایک شرعی ایک عذر تھا کہ روزہ جو ہے وہ تھا، لیکن وہ روزہ پورا کرنا ممکن نہیں تھا، ایک مشکل سفر تھا، ایک مشکل جہاد تھا جس میں وہ نکلے۔ تو انہوں نے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر روزہ جو ہے وہ توڑ دیا یا قضا کر دیا، اور پھر دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پر روزہ جو ہے وہ توڑ دیا یا قضا کر دیا۔ تو ایسی صورت میں ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے سے پہلے ہی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر سفر کے دوران ایسی کوئی سچویشن ہو جائے تو اس میں پھر ہمیں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ قضا کر دیں ہم اس روزے کو۔ اسی طرح سے بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی کر دی، کہ بڑھاپا، کئی دفعہ بڑھاپے میں بہت ساری بیماریاں یا بہت ساری کمزوریاں لاحق رہتی ہیں، یا کوئی ایسی کرونک ڈیزیز جو ہے جس کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنا ممکن نہ ہو۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں مطلب ڈائبٹیز وغیرہ جو ہے، اس کے اوپر بات کی تھی کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ایسی بھی ہیں جس میں کوئی میڈیکل مینجمنٹ یا ٹائم مینجمنٹ یا میڈیسن اور جو میل مینجمنٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے ہم رمضان کے روزے کے برکات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے کوشش کر کے بھی رمضان کے روزے جو ہے وہ میسر نہ ہوں، تو ایسی صورت میں پھر ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایسی بیماری یا ایسا بڑھاپا جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، عارضی بیماری اور عارضی طور پر کوئی کمزوری ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کی قضا دینی ہوگی۔ جیسے کوئی مطلب رمضان کے دوران کوئی ایسی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے روزے چھوڑنے پڑ گئے، تو جتنے روزے چھوٹیں گے اس کی پھر بعد میں قضا ہوگی۔ لیکن کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ مسلسل ہے، جو کہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، جس سے چھٹکارا ممکن نہیں، تو اس صورت میں فدیہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اہم ایک بات جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، اور اس پر کوئی قضا نہیں ہوگی، یعنی قضا سے وہ آزاد ہوگا اگر اس نے 2 وقت کی روزی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھلاتا رہا تھا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو رمضان میں ہمیں درپیش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ایسے تمام امور جن میں روزہ رکھنے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور ارضاع یعنی دودھ پلانے والے وغیرہ کے ہوتے ہیں، اس میں بھی ان معاملات میں بھی اگر شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو اسے توڑ دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں صرف قضا ہوگی، جیسا کہ ہم نے اوپر تذکرہ کر لیا۔ ابھی یہ روایت جو ہے یہ ہمارے لیے سمجھنا اہم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تو لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے، یعنی ایسی کنڈیشن کے انسان کو، بندے کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس کی اپنی کنڈیشن کیسی ہے، اس کی اپنی بیماری یا اس کا اپنا بڑھاپا یا اس کی اپنی کمزوری یا اس کی اپنا سٹیمنا جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اس روزے کو برداشت کر سکے گا گرمی کی وجہ سے یا سفر کی مشقت کی وجہ سے۔ تو ایسی صورت میں یہ سفر کے دوران کی بات ہو رہی، تو ایسی صورت میں تو روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو یا دوسروں کو اس طرح سے ہلکان کرنا یا مصیبت میں ڈالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت میں تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا سٹیمنا اور اپنی جو طاقت یا اپنی جو ہمت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا فیصلہ کرنا چاہیے، اور تکلیف میں نہ خود کو نہ کسی دوسرے کو پھر اس میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں، البتہ کوشش کی جائے، اور پھر اگر کوشش جو ہے وہ اس میں ناکام ہو، ناکام نہیں کہنا چاہیے، کوشش میں اگر کوئی
मुश्किलात हो ऐसी, तो रोज़ा जो है वो खोल देना और कज़ा कर देना, उसकी भी हमें यहाँ पर इजाज़त या रुख्सत या सहूलत जो है वो हमें मिलती है। इसी तरह से कज़ा रोज़ों के मसाइल, ये एक चैप्टर भी आज हम देखते हैं। फ़र्ज़ रोज़े की कज़ा, कज़ा और कफ़ारा, इसमें हमने थोड़ा सा तज़किरा हमने देख लिया। तो जो रोज़े कज़ा हो जाते हैं उनके बारे में अब, कि फ़र्ज़ रोज़े की कज़ा आइंदा रमज़ान से पहले किसी भी वक्त अदा की जा सकती है। फ़र्ज़ रोज़े जो हैं, जितने रोज़े छूट गए हैं, वो उसके बराबर रोज़े जो हैं गैर रमज़ान में रखना, आइंदा रमज़ान आने से पहले पहले, क्योंकि वो फ़र्ज़ हैं और फ़र्ज़ की कज़ा जो है वो भी फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ है तो उसके कज़ा कर दिए और बस कज़ा करके उसको भूल गए। नहीं, वो कज़ा जो है उसको अदा करना वो भी फर्ज है, वो ज़रूरी है। तो लिहाजा नेक्स्ट रमज़ान के आने से पहले पहले उसकी कज़ा जो है वो हमें ज़रूर दे देनी चाहिए, बल्कि माह शवाल में ही वो कज़ा रोज़े जो हैं वो पूरे कर लिया जाए तो क्या ही बेहतरीन अमल होगा उसका। माह शवाल के भी 6 रोज़े जो हैं उनकी भी एक बड़ी अहमियत है। बाद में जाकर उसके बारे में भी हमें ज़रूर तज़किरा जो है यकीनन मिलेगा। लेकिन क़ज़ा रोज़े जो हैं वो उलमा जो है वो कहते हैं कि शवाल के रोज़े जो हैं उनसे पहले कज़ा रोज़े जो हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि कज़ा रोज़े फ़र्ज़ हैं और शवाल के 6 रोज़े जो हैं वो नफल हैं। तो लिहाजा कज़ा, अगर शवाल के रोज़ों का हमने वो ऑफर जी हमें अब अगर अवेल करनी है, तो उसके लिए हमें उससे पहले कज़ा रोज़े जो हैं उनको पूरा करना होगा। और अगर कज़ा रोज़े फॉर एग्जांपल किसी के 2 या 3 हैं, या ख़वातीन की सूरत में किसी के 6 या 7 या 8 रोज़े इस तरह से बाकी हैं, तो माह शवाल में पहले वो कज़ा रोज़े जो हैं वो मुकम्मल करें, उसके बाद फिर 6 रोज़े जो हैं शवाल के वो मुकम्मल कर लें। तो इस तरह से हम शवाल के वो 6 रोज़े जो हैं वो ऑफर भी अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज कज़ा रोज़े जो हैं वो किसी भी दूसरे नफली रोज़े से पहले कज़ा रोज़े अदा करना वो ज़रूरी है हमें रमज़ान के बाद। इसी तरह से फ़र्ज़ रोज़ों की कज़ा मुतफ़र्रिक़ तौर पर या लगातार दोनों तरह से जायज़ है। यानी मुसलसल भी रोज़े रखे जा सकते हैं, 2 3 5 या 8 10 जितने भी हैं, या उनको छोड़ छोड़ कर भी रखा जा सकता है, कभी रख लिया कभी छोड़ दिया। और लेकिन तादाद पूरी करना जो है वो दोनों की ज़रूरी है। इसी तरह से आगे, मरने वाले के कज़ा रोज़े उसके वारिस को रखने चाहिए। ये भी एक अहम है कि मरने वाले ने अगर कुछ कज़ा रोज़े उसके हो गए और उसकी वफ़ात हो गई, तो उसके जो वारिस हैं उस उनको चाहिए कि वो उस मैयत की तरफ से उसके कज़ा रोज़े जो हैं वो पूरे करें। जैसा कि ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम से हमें मिलती है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर जाए और उसका फर्ज रोजे रखने बाकी हों, तो उसका वारिस उसकी तरफ से कज़ा रोजे रखेगा। तो ये कज़ा रोजे कज़ा क्यों होते हैं वो भी हमने उसका अंदाज़ा हो गया कि मतलब किसी मजबूरी की वजह से अगर छूट गए हैं रोजे तो वो कज़ा हो जाएंगे, और उनका अदा करना, क्योंकि वो फ़र्ज रोजे थे जो छूट गए, तो लिहाजा उनका अदा करना ज़रूरी है। और अगर उसकी शख्स की वफ़ात हो गई तो उसका वारिस जो है वो उसकी तरफ से रोजे जो है वो पूरे करेगा उसके। इसी तरह से नफली रोज़े की कदा वाजिब नहीं है। नफली रोज़ा जो है उसकी कदा नहीं हो। नफली रोज़ा रखें, उसको तोड़ दें छोड़ दें, वो उसमें तो बहुत सारी सहूलतें हैं। नफली रोज़े की नीयत जो है वो भी सुबह जवाल के वक्त से पहले पहले कभी भी की जा सकती है, यानी जबकि फ़र्ज़ रोज़े की नीयत जो है वो सहरी से पहले, सुबह नमाज से फजर की अजान से पहले फ़र्ज़ रोज़े की नीयत करना जो है ज़रूरी है। इसी तरह से नफली रोज़ा जो है वो किसी भी वक्त वो खोला जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। उसकी कज़ा वगैरह भी नहीं है। जबकि फ़र्ज़ रोज़ा जो है वो उसकी कज़ा है, अगर वो छूट जाता है, और बूझ कर तोड़ना या छोड़ना जो है वो तो हमारे लिए जायज़ ही नहीं। ऐसी सूरत में तो कफ़ारा जो है वो अदा करना होगा। ये रिवायत हम देखते हैं, हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करती हैं। योम फतह यानी फतह मक्का के रोज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ आकर बैठी, और मैं यानी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ राइट साइड में। इतने में एक लौंडी बर्तन लेकर आई जिसमें पानी की कोई चीज़ थी, पीने की कोई चीज़ थी। लौंडी ने वो बर्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आपने उस बर्तन से पिया, फिर वो बर्तन मुझे दिया। राइट साइड में जो बैठे थे, राइट साइड से पहले देना चाहिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बर्तन मुझे यानी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिया। मैंने भी उसमें से पिया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तो रोज़ा था, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा पानी पीने के लिए मैंने रोज़ा तोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने कज़ा रोज़ा रखा था?
मैंने अर्ज किया, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर नफली रोज़ा था तो कोई हर्ज की बात नहीं। यानी अगर नफली रोज़ा है तो उसमें ऐसी छोटी छोटी बातें जो है, अगर वो उसको खोल लिया जाए रोज़ा, तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। अगर कज़ा रोज़ा होता, तो यहाँ पर उसमें क्लैरिफिकेशन अगर मिल रही कि कज़ा रोज़ा जो है वो भी गोया फर्ज रोज़े की तरह है, तो लिहाजा कज़ा रोज़ा जो है उसको भी जब रखा जाए तो उस तरह से रखा जाए जिस तरह से फर्ज रोज़ा रखा जाता है, क्योंकि फर्ज रोज़े की कज़ा हम दे रहे हैं वहाँ पर। इसी तरह से किसी किसी अगर किसी ने बादल की वजह से रोजा कबल अज वक्त इफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में यकीन हो गया कि सूरज गरूब नहीं हुआ था, इस सूरत में कज़ा वाजिब होगी। इसी तरह सहरी के वक्त खाना खा लिया और बाद में यकीन हो गया कि सुबह सादक हो चुकी थी, इस सूरत में भी कज़ा वाजिब होगी, कफारा नहीं होगा। ये दो सूरतें भी ऐसी हैं जिसमें जानबूझकर या ऐसी नीयत के साथ किसी ने रोजा जो है वो नहीं खोला या तोड़ा, या रखने की सूरत में भी, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन ऐसी होगी एक बादलों की वजह से या मौसम की वजह से, तो ऐसी सूरत में भी कज़ा होगा, कफारा नहीं होगा। और ये सूरत आजकल जो आम शहरों वगैरह में तो ऐसी सूरत अब कम ही होती है, लेकिन हाँ सफ़र के दौरान कभी ऐसा मामला हो सकता है कि ऐसा वक्त कभी आ जाए, तो ऐसी सूरत में फिर हमें ये रियायत जो है मिलती है। और सफ़र में भी अगर देखें तो बहुत सारी जगहों पर सफ़र में भी अब रास्ते रास्ते में आकर इस तरह से सराय वगैरह मिलते हैं, या लंबे सफ़र, लेकिन बाज़ औक़ात जो है लंबे सफ़र में जहाँ पर दूर दराज तक कोई आबादी नहीं होती, तो वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन जो है वो इससे हम आज भी मतलब हमारा सामना आ सकता है। अलबत्ता उसमें भी वो पेचीदगियाँ जो पहले ज़माने में थी वो आजकल भी नहीं होंगी। आजकल जो घड़ी में जो वक्त वगैरह रहते हैं, उससे हमें सारे अंदाजे रहते हैं हर इलाके का। वहाँ पर नमाज के औकात और सहरी और अफ्तारी के औकात जो हैं वो भी हमें पूरा हमारे मोबाइल डिवाइसेस वगैरह पे अवेलेबल होते हैं। तो आजकल भी हम उस तरह से कोई सूरत जो है वो नहीं आती। हमारे पास बहुत सारे वसाइल हैं जिसके ज़रिए से हम ये सिचुएशन जो है वो टैकल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी ऐसा हो जाए, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, रास्ते में मोबाइल मोबाइल की बैटरी डेड हो गई और करीब करीब कोई आबादी भी नहीं है और वक्त जो है वो इफ्तार का हो चुका है, तो ऐसी सूरत में ऐसा कोई मौका जो है वो आ सकता है। तो बहरहाल क़यामत तक के लिए ये आसानियाँ हमें मुयसर हैं, तो इससे फ़ायदा जो है जब जब भी हम उठा सकें। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रोज़ हमने बादल की वजह से रोज़ा इफ्तार कर लिया, बाद में सूरज निकल आया। हदीस के एक रावी जो है उसामा, वो कहते हैं मैंने हिशाम यानी दूसरे रावी से पूछा, क्या लोगों को इस वजह से कज़ा का हुक्म दिया गया था? तो हिशाम ने जवाब दिया कि कज़ा के बगैर कोई चारा ही नहीं, यानी कज़ा जो है वो देनी पड़ेगी ऐसी सूरत में, अगर कोई सिचुएशन हो जाए, अगर यकीनी तौर पर ये जानबूझ पर किया हुआ अमल नहीं है, बल्कि ये ऐसी सूरत जो है वो पेश आ गई, दरपेश हो गई, तो ऐसी सूरत में फिर कफारा जो है वो नहीं होगा, बल्कि कज़ा होगी उसकी। जी, मेरा ख्याल है यहीं पे रुकते हैं हम, हमारा वक्त जो है वो भी काफ़ी हो चुका। और हम थोड़ा सा सहूलत के साथ या थोड़ा सा मतलब आराम के साथ, आसानी के साथ ही चलते हैं आगे। और इंशाल्लाह अगली मजलिस कल, और फिर दो मजलिस उसके बाद हम इतवार और पीर को भी हम इसी सिलसिले की रखेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें जो हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको सही तौर पर हमारे दिलों में उतार कर उसके मुताबिक हमें जहाँ जहाँ हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है हम अपनी इस्लाह कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इजाज़त भी चाहते हैं इसके साथ ही, सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। मेरे कहने में, हमारे सुनने में, समझने में कुछ ऊंच नीच है, कुछ कमी बेशी है, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला हमें सही समझ के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.